Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। खुदा पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। खुदावन खुदा ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਔਰ ਅੰਤ ਹੋ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੋ। ਖੁਦਾवन खुदा ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾवन खुदा ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾवन खुदा ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾवन खुदा ਤੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਖੁਦਾवन खुदा। ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਖੁਦਾवन खुदा ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾवन खुदा। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਖੁਦਾवन खुदा। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਔਰ ਖੁਦਾवन खुदा ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਖੁਦਾवन खुदा, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣ ਖੁਦਾवन खुदा। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਲੈ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਖੁਦਾवन खुदा ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਯਿਸੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਹਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਸਾਰੇ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਚੜੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਚੜ੍ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ। ਤੇਰਾ ਜਲਾਦ ਕੰਮ करे, पवित्र आत्मा काम करे प्रभु यीशु राजा। मैं ना बोला तेरी पवित्र आत्मा बोले प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र खुदा, तेरा धन्यवाद। जोरा बरा हथ तेरे हत्था बदलने प्रभु, ना हत्थां नूं संभाल ते चंगे कर प्रभु। तेरी वडियाई होवे, तेरा नाम ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜਾ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਲ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਹਲੀਮ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਇਆਵਾਨ ਬਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਇਆਵਾਨ ਬਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜਾ। तेरा शुक्र खुदा, तेरा धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद, स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद, हालेलुया। इस ग्रुप ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਲਗਾ, ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਲੱਗੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ शैतान का नाश करना, सुक्कियां जड़ां च ले जाई प्रभु मेरे स्वर्गी पिता। जो भजन गीत बोलिए प्रभु स्वर्ग दे विच कबूल होण प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, सारे दे गले खोलने प्रभु यीशु राजा। मदद करनी, सहायता करनी, आने वाले दिन भले करने प्रभु। सारे लिए चंगे चंग समा, नवां साल आने वाला प्रभु, सारे लिए सलामती वाला होवे प्रभु। तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु राजा। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਤਰਸ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ, ਮਦਦ ਕਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਚ, ਆਮੀਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੇ ਆਤਮਹਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਦਸਾਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਜੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਰਬਰ ਤੇ ਬਿਹਾਗ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਤੇ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। Praise the Lord. Praise the Lord. ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਜਪੋ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਤੇ
Amen. ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਸਾਰਾ ਔਰ ਸਮਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਸਦਾ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਤੌੜੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਨੀਆ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਸਨੀਆ। प्रेज द लॉर्ड। मैं गाऊंगी ज़बूर नंबर 24। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब धारो। जां जलाल दा बादशाह वे, सिर तद ऊंचे करो। जां जलाल दा बादशाह वे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह कमाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब धारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब धारो। जां जलाल दा बादशाह वे, सिर तद ऊंचे करो। जां जलाल दा बादशाह वे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। प्रेज लॉर्ड। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪਕ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ ਵੀ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰੂਨ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸੰਦੀਪਕ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਖਣ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਬਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਮਹਿੰਦਰ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲੈਸ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ,
ਇਹੀ ਹੈ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਲੈਣਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਲਾਰੇਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਲਾਰੇਂਗਾ। ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਏਗਾ। ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਕਾਰਜ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਪ ਸਵਾਰੇਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਲਾਰੇਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਲਾਰੇਂਗਾ। ਨਾ ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁਕੂੰਗਾ, ਨਾ ਮਟਕੀ ਚੋਂ ਆਟਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਪਾਊਂਗਾ ਘਾਟਾ। ਨਾ ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁਕੂੰਗਾ, ਨਾ ਮਟਕੀ ਚੋਂ ਆਟਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਪਾਊਂਗਾ ਘਾਟਾ। ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਕਾਰਜ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਲਾਰੇਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਲਾਰੇਂਗਾ। ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਦਰਿਏ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਦਾ। ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਦਰਿਏ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਪ ਬਚਾਏਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਲਾਰੇਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਲਾਰੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੀਲਮ ਸਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। Praise the Lord. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। एक मिनट। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया। सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तू छेती आ। मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच
ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਂਗ ਬਾਖੂਰ ਦੇ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਾ ਦੁਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਖਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਖਵਾਲੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਗਾਬਾਨ ਬਿਠਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪਦੀ ਤੇ ਮਾਇਲ, ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪਦੀ ਤੇ ਮਾਇਲ, ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ, ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਏਕ ਗਿਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। Praise the Lord. Hallelujah. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤਨੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਸਾਰੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਓ, ਮੰਨਾ ਖਿਲਾਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਈਏ ਯਿਸੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਠਹਿਰਿਆ ਰਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਨਸ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਦੀਏ ਨਾ ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਿੰਜ਼ਾ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਮਾਇਆ। ਕਿੰਜ਼ਾ ਸਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਦਾ ਸਿਸਟਰ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਰ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। God bless you, अंजना। खुदा आपको बरकत दे और खुदा आपको नया जोर, नई ताकत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, तवानाई दे। और खुदा आपके ऊपर अपना हाथ बढ़ाए रखे ताकि खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आप अपने आप को पेश करती रहें और अपने बदन को खुदा के सुपुर्द करें। खुदा
آپ کے ذریعے سے بہت سی روحوں کو بچائے اور بہت سے لوگوں کو مضبوط کرنے کا، اٹھا کھڑا کرنے کا آپ باعث بنتے رہیں. God bless you. پرستش کے لیے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ خدا ان نے آپ کے گلوں کو استعمال کیا تاکہ خدا ان کے نام کو اونچا ہو، آپ اونچا کریں. آپ کے بدن جو خداوند نے اپنی عبادت کے لیے پرستش کے لیے بنائے ہیں، آپ نے ان کو استعمال کیا. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کی چولیاں ہمیشہ بھری رہیں روحانی برکتوں سے، جسمانی برکتوں سے. God bless you. ہم روٹی اور پانی کے لیے دعا کریں گے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، خدا ہم تیرے لہو کے لیے، تیرے خدا یسوع بدن کے لیے جو تو نے ہماری خاطر توڑا. خدا ہماری خاطر لہو کو بہایا تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا ہم نجات پائے، ہم مکتی پائے، ہم خدا شفا پائے، رہائی پائے، بحالی ہماری زندگی میں آئے. خدا یسوع ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خدا تو نے کس قدر ہم سے محبت کی، خدا کتنا تو نے درد، ذلت، شرمندگی خدا تو نے ہماری خاطر صحیح. خدا تیرا شکر کرتے ہیں. کون ایسا کر سکتا ہے سوائے تیرے یسوع؟ کون کسی گناہ گار کی خاطر جو گندے ہوں، خراب ہوں، ان کی خاطر اپنی جان کو دے؟ خدا یسوع یہ واحد تو ہی ہمارا زندہ خدا ہے، جو ہم جب تجھ سے دور تھے، تجھ سے نفرت کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، گناہ میں پڑے ہوئے تھے، خدا تب یسوع تو نے ہماری خاطر جان دی. خدا ہماری خاطر اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکوائے. یسوع تیرا شکر کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے خلاف لکھا گیا، پڑھا گیا، جو چلے چڑھائے، جو جادو ٹونا، جو تویز دھاگا، جو لانتے تھی ہمارے خلاف، شیطان کے سارے منصوبے خدا یسوع تو نے وہ ختم کر دیے ہماری زندگی سے، ان کا نام و نشان مٹا دیا. خدا وہ جو پیالہ خدا کے غضب کا ہم نے پینا تھا، ہمارے اوپر خدا کا غضب نازل ہونا تھا، خدا یسوع وہ سارا تو نے پی لیا. خدا یسوع تو نے سارا اپنے بدن کے اوپر لے لیا. خدا یسوع ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی حمد، تعریف اور ستائش کے لائق ہے. خدا ہمیں فضل دے، ہم پہ رحم کر، ترس کر کہ جس طرح سے، جس طریقے سے خدا تیری عبادت کرنی چاہیے، جس طرح تجھے اپنی زندگیوں سے اونچا کرنا چاہیے، اس طرح سے ہم کر سکیں. وہ تعظیم، وہ تیری عزت جس کے تو لائق ہے وہ کر سکیں. خدا ہم پہ رحم کر، ترس کا. خدا یسوع تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا تو نے اچھا مددگار ہمیں بخشا. خدا پاک روح ہمیں عطا کیا تاکہ وہ ہمیں یسوع تیری مانند بنائے. ہمارے اوپر وہ مسالے، وہ آئل جو ہے لگائے جو تجھے پسند ہے، جس سے خدا یسوع تجھے اپنی خوشبو آئے. خدا پاک روح ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا یسوع کی مانند تو ہمیں بنا رہا ہے. تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں گندگی سے، ناپاکی سے پاک اور صاف کر رہا ہے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ہمارے اندر سے وہ ساری بیماریاں، سارے حرام کاریاں، زنا کاریاں، وہ بدگوئیاں، وہ غصہ، ناراضگی، وہ نفرتیں ہمارے اندر سے خدا تو ہم نکال رہا ہے. ہمارے اندر وہ نئی میں جو ہے بھر رہا ہے. پرانی انسانیت ہمارے میں سے نکل رہی ہے. ہمارے گندے بہیویئر، گندی عادتیں خدا پاک رو تو تبدیل کر رہا ہے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں. خدا اب جب اس پانی کو پیئیں اور اس روٹی کو لیں تو خدا ہمارے اندر تیرا نیا مزہ، تیرا نیا زور آ جائے. خدا تیرا مزاج ہمارے اندر آ جائے. وہ حلیمی، وہ پاکیزگی، خدا محبت کی آگ ہمارے اندر لگ جائے. خدا اور خدا ہمارے اندر وہ ایمان، وہ پاک ترین ایمان آ جائے جو خدا ہمیں تیرے قریب لے کے جاتا ہے، جو تیری تجھ پہ بھروسہ کرنا، توکل کرنا سکھاتا ہے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں. خدا اس دعا کو ہم بڑے ہی ایمان اور توکل اور بھروسے سے سب مل کر مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. آپ ایمان سے اس کو لیں، پانی کو، اور
रोटी जिन्होंने रखी हुई है, जो ऑयल रखते हैं वो भी, जहाँ कहीं भी आप बीमार हैं उस ऑयल को लगाया करें, पानी को पिया करें, रोटी को खाया करें, ताकि तीनों तरीकों से हमारे अंदर से वो सारी बीमारियां, गंदगी, नापाकी पाक और साफ हो जाए। हम उनका शुक्र हो। हम मुकाशवा 12 बाब और उसकी 5 आयत जो थी, कल हमने थोड़ा सा सीखा था इसके बारे में। एक बेटे के बारे में, मर्द के बारे में थोड़ा सीखा हमने, और बच्चे के बारे में सीखा था कि बच्चा जो है, यानी वो छोटा सा जो ग्रो तैयार हो रहा है, वो जो लोग तैयार हो रहे हैं, वो बच्चे की मानित, जैसे कह लें उनके अंदर जिस तरह खुदा यीशु मसीह में हलीमी थी और फरोतनी थी, बच्चा जो है इस चीज को पेश करता है कि वो कलाम को लेता है और कह लें कि सीखता जाता है, या हलीम उसके अंदर फरोतनी होती है, हलीमी होती है। तो इसलिए बच्चा जो है इस चीज को पेश करता है कि जो इस तरह के लोग जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। और मर्द के बारे में हमने सीखा, यानी ये जो यहाँ पे उर्दू में बेटा लिखा हुआ है या लड़का लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है मैन चाइल्ड, यानी वो बच्चा, मर्द बच्चा है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मैन चाइल्ड। तो वो जो मर्द बच्चा है, तो मर्द के बारे में हमने सीखा कि वो कह लें कि मजबूती को या दिलेरी को पेश करता है, कि जो मर्द होता है, या कल हमने थोड़ा वर्सेस पढ़ी थी इस बारे में है ना, तो मर्द इस चीज को पेश करता है, यानी मैन चाइल्ड जो है ईमान में वो पुख्ता हो या पाक तरीन ईमान हो, वह पाक कह लें पाकीज़गी में बढ़ रहा हो, और खुदा यीशु जैसा उसका मिजाज हो। तो ये थोड़े थोड़े हमने वर्सेस के जरिए सीखा था कि मर्द का क्या मतलब है ना। और वो कह लें कि गर्मजोशी से भरा हो, जाम फिशानी से खुदा उनके लिए काम कर रहा हो, और शैतान पे गलबा पाने वाला हो, यानी फतह हासिल करने वाला हो। और यानी ये एक मर्द का जो मतलब है कि मजबूत हो, कलाम के ऊपर अमल करने वाला हो, और शैतान को अपने पांव तले कुचलने वाला हो, जिस तरह के खुदा यीशु मसीह को यहूदा का बब्बर शेर कहा गया है ना। और हमें सिपाही कहा गया है, जवान मर्द कहा गया है बाइबल में, है ना। तो इसलिए इस तरह के लोग जो हैं, जो तैयार हो रहे हैं, वो क्या है, वो मर्द की तरह है, वो उस बेटे की तरह है, लड़के की तरह है, वो उस बच्चे की तरह जो तैयार हो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए यानी रूहानी तौर पे भी कह लें और जिस्मानी तौर पे भी, जो ये बात बहुत ही सख्त है, मुझे ऐसे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो सच है वो भी बताना जो है बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कह लें गलत फहमी में है, खुश फहमी में है, या किसी ने इस तरह खोल के बयान नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये एक छोटी सी हमारी कह लें फैमिली है, तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें बच्चे जो हैं वो नहीं होंगे। जो दुल्हन तैयार हो रही है, जो मैन चाइल्ड है, जो मर्द बच्चा है, वो उसमें बच्चे शामिल नहीं होंगे। इसलिए कि जो कह लें इसकी तैयारी है, जो खुसूसियात इस ग्रोह में या इस मर्द बच्चे में होनी चाहिए, वो बच्चे में कभी भी नहीं हो सकती। बच्चा, उसने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, उनको पाकरू का बपतिस्मा नहीं हुआ, वो ईमान पे उस तरह से खड़ा नहीं हुआ, वो यीशु की मानित बना नहीं है। और भी जो हमने खुसूसियात सीखी हैं कि इस बच्चे में होनी चाहिए, वो बच्चे में नहीं होती। इसलिए जो बच्चे हैं, जो छोटे हैं, जो अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचे
उसके जो हमने उसमें पढ़ा कि मसीह के कद के अंदाजे तक नहीं पहुंचे, जो कामिल नहीं बने, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। वो रूहानी तौर पे भी बच्चे कह ले जो है अभी जो दूध पीते हैं, जो हर बात में जैसे कह ले दूसरों की हेल्प या दूसरों पे डिपेंड करते हैं, या इस तरह से ईमान में मजबूत नहीं है, पाकीज़गी में नहीं चल रहे, खुदा के कलाम के ऊपर अमल नहीं कर रहे, हुक्मों पे नहीं चल रहे, जो रूहानी तौर पे भी बच्चे हैं वो भी, और जो जिस्मानी तौर पे बच्चे हैं जिन्होंने अभी ये सब कुछ नहीं किया हुआ, वो रैप्चर में शामिल नहीं होंगे। ये सख्त है कलाम, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उस जगह तक पहुंचे, उस दर्जे तक या उस रुतबे तक पहुंचे, तो चाहे आपके बच्चे छोटे ही हैं, इसीलिए आपको पता है शायद कलाम में वो खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि जो हामला है, जो दूध पिलाती हैं औरतें, तो जो हामला है उसके पेट में जो बच्चा है, क्योंकि वो हवाला नहीं मुझे याद है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि दाऊद भी कहता है कि मैं पैदा हुआ विच गुनाह दे, यानी माँ के पेट से क्या है, गुनाह में हम पैदा होते हैं। पुरानी इंसानियत या वो गुनाह वाली फितरत जो खसलत जो है वो हमारे अंदर होती है, वो उस वक्त खत्म होती है जब पानी का बपतिस्मा हम लेते हैं ना। हमारी जो पुरानी इंसानियत है, जैसे कह लें हम मर जाते हैं जिस्मानी तौर कह लें, ये महल उसमें रोमी के खत में लिखा हुआ है कि तब तक हम जलाए नहीं जा सकते, यानी मुर्दों में से जिंदा नहीं हो सकते अगर हमने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, जो कि हम लेते हैं। जैसे कि कह लें ये एक बपतिस्मे का एक हलाएगा मैं कह रही कि टॉपिक है, इसलिए ज्यादा इस पे मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन ये उसमें खुसूसियत नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सीखने के लिए या कह लें कि दूसरों से किसी से अगर आपने बात करनी है, तो रोमियो में 6 बाब है, उसमें बड़े ही खूबसूरत पालूस रसूल ने हमें बताया है कि तब तक हम मुर्दों में से जिंदा जो है, जो जलाए जाते हैं, जैसे जब खुदाम यीशु मसीह ने आना है तो मुर्दों ने भी जिंदा होना है। तो वो एक जोर जो एक ताकत जो होगी, नहीं तो एक जगह लिखा है कि कब्र में इतनी ताकत है कि वो हमें पीछे को खींचती है। लेकिन जिन्होंने इस तरह से खुदाम यीशु मसीह के साथ, क्योंकि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम मर जाते हैं, हमारे अंदर खुदाम यीशु मसीह जिंदा हो जाता है। हाँ चलो ठीक है, अभी मुझे वो वर्ड्स नहीं मिली, लेकिन ये जो रोमियो 6 बाब है उसमें ये लिखा हुआ है खास बपतिस्मे के बारे में। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं, यानी हम मसीह में दफन हो जाते हैं और खुदाम यीशु मसीह में जिंदा किए जाते हैं, यानी पानी का बपतिस्मा जब हम लेते हैं, जब पानी के अंदर जाते हैं तो हम मर जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो असल में क्या होता है, ये एक रूहानी तजर्बा है। ये आम लोग, आम मसीही इसको समझते नहीं है, लेकिन ये एक रूहानी, क्योंकि हम अब क्या है, रूहानी हैं, तो ये सारा कुछ रूहानी तौर पे हो रहा है। जो कुछ भी ये नए ऐतनामा जो है सारा ही रूप के ऊपर है, यानी क्योंकि अब क्या है, अब जिस्मानी तो रहे ही नहीं, हमारी लड़ाइयाँ जो है, हमारा उठना बैठना, जो कुछ भी हम करते हैं, अब हम रूहानी में रूहानी है, अगर हम मसीह में आ गए हैं। तो इसलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो जिस्मानी तौर पे जो गुनाह की हमारी थी कह ले पुरानी इंसानियत, वो उसमें दफन हो गई और अब हम मसीह में जिंदा हो गए हैं। तो इसलिए बच्चा जो है, या उस वक्त जो औरत प्रेग्नेंट है, उसके पेट में है बच्चा, अगर वो माँ जैसे कह ले एक दुल्हन के तौर पे तैयार भी है, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा है उसकी वजह से वो कह ले जब रैप्चर होगा तो नहीं उठाई जाएगी। और जो दूध पिलाती हैं उनका ध्यान क्या होता है, वो अपने बच्चे की तरफ ही होता है हर वक्त। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मैं जैसे कह लें कि मैं जिंदा उठा ली जाऊं और बच्चा मेरा इस तरह रह जाए। उसका जैसे कह लें हर वक्त ध्यान
उस बच्चे की तरफ लगा होता है। तो इसलिए भी खुदा यीशु मसीह ने कहा कि उस वक्त जो हामला होंगी, जो दूध पिलाती होंगी, उनके लिए, जैसे कह लें कि वो आयत नहीं मुझे याद लेकिन ये लिखा हुआ है ना, तो इसलिए जो बच्चे हैं वो रैप्चर में जब यानी खुदा यीशु मसीह बादल पे आएगा तो वो नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान, इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा जो अपने माँ बाप बहन भाइयों से सबसे ज्यादा अजीज मुझे रखता है वो मेरे लायक है, लेकिन जो मुझसे ज्यादा किसी और को मोहब्बत करता है, क्योंकि उस वक्त ये जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ का ध्यान कह लें कि बिल्कुल पूरा जो है वो उस बच्चे की तरफ होता है, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा जो सबसे ज्यादा मुझे प्यार करता है वो कह लें मेरे लायक है, वो खुदा यीशु मसीह कह लें उस दुल्हन की माने तैयार हो रहे हैं। लेकिन जिनका ध्यान बच्चों की तरफ या और भी किसी चीजों की तरफ यानी दौलत की तरफ है या अपने हस्बैंड की, बीवी की, किसी की भी तरफ है, तो वो रैप्चर में उठाए नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है। क्योंकि ये तो आंख झपकते हो जाने, एक तो तैयारी होगी पहले, दूसरा वो एक पल में आंख झपकने में कितना टाइम लगता है, मैं कुछ सेकंड लगता होगा, है ना, तो उसमें ये रैप्चर जो है यानी हो जाना है। खुदा यीशु मसीह के जो ये बच्चा है ये आसमान तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इसलिए ये सख्त कलाम है, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारे पास्टर हमें, उन्होंने बाद में बताया था यानी मैसेज में नहीं बताया था, लेकिन ये क्योंकि एक छोटी सी कह लें फैमिली है हमारी, तो इसलिए मैं इसी में आपको बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को, छोटे ही हैं, उनको तैयार करें। जैसे मैंने पहले भी काफी दफा ये टेस्टमनी कह लें शेयर की कि जहाँ पे सीरिया में या जहाँ पे आपको पता है मसीहियों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो वहां पे बहुत सी गवाहियां ऐसी सुनी है कि उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को, 3 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा, उनको ये सिखाया कि कभी भी यीशु का इनकार ना करना, चाहे आपके सामने हमें मार दिया जाए या आपको कोई मारे, यानी तो यीशु का इनकार ना करना किसी भी तरीके से, जैसे भी वो आपको मारे, जो कुछ मर्जी हो जाए, आपने यीशु का इनकार नहीं करना, ताकि वो वहां जाके क्या होगा, दुल्हन ने और जो शहीद होंगे खुदा यीशु मसीह की खातिर, वहां पे वो इकट्ठे होंगे। लेकिन अगर यीशु का इनकार कर देंगे तो फिर तो जहन्नम की आग में होंगे, आग की झील में होंगे, है ना। ये हमने उसमें काशवाही में पढ़ा कि जो यीशु का इनकार कर देंगे वो आग की झील में डाले जाएंगे, जो वो चिप ले लेंगे वो आग की झील में डाले जाएंगे। इसलिए बच्चों को सिखाएं, अब वो वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे से छुपाएं कि ये सख्त कलाम है, तो कहीं कोई ये ग्रुप ना छोड़ के चला जाए, कोई खुदा के ऊपर उसका ईमान जो है डामाडोल हो जाए। हमें ये सच्चाई जो है कलाम की वो पता होना चाहिए। अगर आपके, मैं कहूँगी कि किसी ने नहीं बताया, पास्टर ने, या ये मूवीज जो बनाते हैं, ये जो हम देखते हैं रैप्चर हो गया तो बच्चे गायब हो गए, उनको कलाम की जो सच्चाई है, गहरी भेद है, मुकाशफे हैं, वो उनके ऊपर नहीं खुले, ठीक है। लेकिन आप, क्योंकि जैसे मैंने काफी तरह का, मैं आप एक बच्चों की तरह, आप मेरे रूहानी बच्चे हैं, तो मैं आपसे कोई भी, जिस तरह पालूस रसूल कहता है कि कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती, साफ साफ आपको पता हो, ताकि आप भी तैयार हों ज़हनी तौर पे, और आपकी मोहब्बत खुदाम के साथ इस तरह की हो कि उसके बगैर आप रैप्चर में उठाए नहीं जाते, उठाए जाएंगे, नहीं जाएंगे, अगर आप खुदा से, यीशु मसीह से इस तरह की मोहब्बत नहीं करते। तो इसलिए अपने बच्चों को सिखाएं, और जिन्होंने अभी तक जैसे कह लें बच्चे हैं, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, पाकरू का बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन जब वो खुदा यीशु मसीह की खातिर जान देंगे तो वो उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे 1000 साल यानी बादशाही कह लेंगे तख्त के सामने। तो ये एक सच्चाई कह लें कि आप इसको कबूल करें और खुद भी तैयार हों ज़हनी तौर पर, और अपने बच्चों को भी तैयार करें, ताकि कहीं वो आ, अनजाने में या उसमें रह ना जाए, खुश फहमी में या गलत फहमी में, कि हम अगर खुदा यीशु मसीह का इनकार भी कर देंगे तो तब भी हम शायद खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे।
खुदाम की बादशाही में वो लोग जिन्होंने खुदाम यीशु मसीह का इनकार कर दिया हुआ है वो दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक और इसी आयत पे बात जो है वो करूंगी कि यहाँ पे लिखा हुआ है उर्दू में कि वो बच्चा जो है जो लोहे के आसे से हुकूमत करेगा। अच्छा, दो बातें कि जो लोहे के आसे से हुकूमत करने के लिए सिर्फ नए अहदनामे में जो इस तरह का ग्रोह तैयार हो रहा है उसको कहा गया है, जो अदलो इंसाफ से कह लें सच्चाई पे कायम रहता है या खुदा उनके उस तरह से हुक्मों पे अमल कर रहा है, उसके साथ खुदा यीशु मसीह ने वादा किया है कि वो लोहे के आसे से हुकूमत करेगा। इसलिए जो पुराने बहुत सारी यहाँ पे कह लें आपने भी स्टडी सुनी होगी कि वो जो 1,44,000 है यहूदी, उनके बारे में कहा गया है, तो उनके साथ खुदा ने ये कभी वादा नहीं किया था। उनके साथ खुदा ने ये वादा किया था कि उनको मिरास मिलेगी या वो उनके क्या कहते हैं कि वो फले फूलेंगे और सारी पैदावार जो है फसल का हासिल मिलेगा, या इस तरह से वादे किए थे। लेकिन हुकूमत करने के लिए, जज करने के लिए उनके साथ खुदा ने कभी वादा नहीं किया था। इसलिए ये वादा खुदाम यीशु मसीह की जो खून से धुले हुए हैं, खुदाम यीशु मसीह पे जो ईमान लेके आते हैं या खुदा बपतिस्मा लिया हुआ है, पाकरू का बपतिस्मा हुआ है, उनके साथ वो बरगजीदा वो मुकद्दसीन जो हैं उनके साथ वादे जो हैं पुराने अगर हम अहदनामे में पढ़ें तो जो इस्राएली कौम है उनके साथ ये वादे या ये वादा कहीं पे भी नहीं किया गया। ये उनके साथ वादा किया गया है जो ये अभी हम हवाला पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करना चाहती हूँ। यानी उनके साथ वादा किया गया है जो रूह में एक है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ। ये खुदाम यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में हमें ये मिलता है कि जो एक बदन है खुदाम यीशु मसीह के साथ क्या है, जिस तरह बाप मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, यानी इस तरह खुदाम यीशु मसीह ने जो कहा है, ऐसे लोगों से खुदा ने वादा किया है कि वो लोहे के आसे जो है वो हुकूमत करेंगे। और उनके साथ खुदा यीशु मसीह ने वादा किया कि जो गलबा पाएंगे, जो फतह हासिल करेंगे, वो मेरे साथ तख्त पे मेरे साथ बैठेंगे। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने ये वादा किया, खुदा बाप ने, यहोवा पाक खुदा ने, जो इस्राएली कौम है जो पुराने अहदनामे में है, उनके साथ ये वादे नहीं किए गए, है ना। तो एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो उर्दू में लिखा हुआ है कि यक का यक वो बच्चा जो था खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। और अंजना हमारे साथ माया है या अंजना है, आप उर्दू में इस हवाले को पढ़ना, तो फिर मैं आगे बात करती हूँ। जो 5 आयत है काशफा 12 बाब उसकी 5 आयत जो है उसका आखिरी हिस्सा जो है जिसमें लिखा है कि उसके तख्त के पास पहुंचा दिया गया। माया अभी हिंदी में पढ़ना। हाँ जी। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਨਰ ਬਾਲ ਜਣੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। आमीन। ओके ठीक है, माया पढ़ना। 12 का 5 ना दीदी? हाँ जी हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही हम जो बहुत थे मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। आगे भी दी। मुकाशवा 12 बाब उसकी 5 आयत यही पढ़ा। सॉरी ये रोमिंग निकाल के देखी। ओके ओके, मुकाशवा 12 बाब उसका 5 आयत। और निदा आप ये अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल डाउनलोड है उससे पढ़े, नहीं तो ये जो सामने आयत लिखी हुई है इंग्लिश में आप इसको पढ़ना बाद में माया के बाद। हाँ दी।
और वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। आमीन। दोबारा पढ़ना। उसके सिंहासन तक। और वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। ओके, ठीक है जी। निता, आप ये इंग्लिश में पढ़ना। अच्छा जी, एक मिनट। 12 बाब की कौन सी आयत है? 5 आयत। She brought forth a male child, one who is to rule all the nations with a rod of iron. But her child was caught up to God and to his throne. हाँ जी, ठीक है, थैंक यू जी। वो महल हिंदी में और उर्दू में और पंजाबी में मैंने देखा कि यही लिखा हुआ कि उसके पास पहुंचा दिया गया, लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखें तो लिखा हुआ है एंड टू हिज थ्रोन, यानी खुदा के तख्त तक कह लें या उसके ऊपर कह लें या उस तक पहुंचा दिया गया, ये नहीं लिखा कि पास पहुंचा दिया गया। तो इसलिए बहुत से मैं कहूँगी कि हमारे आपने भी खास तौर पे मैं कहूँगी कि नेता वफा इन्होंने या सुरैया लोगों ने, बाकियों का मुझे इतना पता नहीं है, कि बहुत सुना होगा। तो ज्यादा लोग जो हैं वो इसकी जैसे कह लें इसका यही तशरीह करते हैं, यही कहते हैं कि वो तख्त के आगे पहुंचा दिया गया, जबकि हमें कलाम से ये पता चलता है कि वो तख्त तक या तख्त के ऊपर कह लें, उसके थ्रोन यानी उसका जो तख्त जहाँ पे लगा हुआ है वहां तक उसको पहुंचा दिया गया। कभी किसी में भी हमने ये नहीं देखा कि तख्त के सामने पहुंचाया गया, है ना। तो मुझे नहीं पता क्यों कैसे, यानी ये सारे ही हमने जितने हवाले पढ़े हैं, जिस तरह मेरा हाल कहते हैं कि दो जो कह लें कि अगर आयतें हैं हमें मिलती हैं उसके सबूत के लिए, कि उस बात को साबित करने के लिए, तो हमें कितने हवाले मिलते हैं। हमने ये पिछले दिनों ही पढ़ा कि खुदा यीशु मसीह ने जो हमें हमारे साथ वादा किया कि तुम गालिब आओ, ये मुकाशफा की किताब में है ना, कि जो गालिब आए वो मेरे साथ मेरे तख्त पे बैठेगा, ये महती से चैप्टर में लिखा है ना। और एक और जगह लिखा है मेरा ख्याल 2 उसमें भी ये लिखा हुआ है कि मैं उनको इख्तियार दूंगा, वो लोहे के आसे से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के सॉरी वो आयत मैंने आज ढूंढी नहीं है, लेकिन 2 आयतें कह लें कि काफी होती हैं हमें ये बात को प्रूफ करने के लिए कि ये बात सच है। तो हमें हमारे साथ खुदाम यीशु, हाँ एक और आयत जो खुदाम यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी पहली और महल दूसरी आयत में लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। तो इसका मतलब क्या है कि और खुदाम यीशु मसीह कहाँ पे है? तख्त पे है। तो उसने उनके साथ भी यही वादा किया जो इस तरह से तैयार हो रहे हैं कि तुम मेरे साथ खुदावंद के तख्त पे होगे। तो इसलिए जो तख्त के सामने की बात करते हैं, अब वो इस तरह कह लें कि वो खुद भी कह ले उसी जगह की जाने की तैयारी कर रहे हैं, और जो अपनी कलीसिया है या जिन लोगों को भी वो बताते हैं या सिखाते हैं उनकी भी तैयारी जो है उसी जगह की जाने की कर रहे हैं, है ना। तो ये भेद, ये मुकाशफा जो है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किए है, ये कह लें कि मुकाशफा खुला नहीं है, क्योंकि हमें खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो गालिब आएगा, जो पता हासिल करेगा, वो क्या करेगा? मेरे साथ मेरे तख्त पे बैठेगा। उसने ये नहीं कहा कि तख्त के सामने
ये 3 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, निदा आप पढ़ना, कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ ये वादा किया है, जो गालिब आए, जो ओवरकमर हैं, वो कहाँ पे होंगे? तख्त के ऊपर होंगे, मेरे साथ बैठेंगे, ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। जी निदा। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। हाँ जी, बस ठीक है, थैंक यू। तो खुदावंद यीशु मसीह ने साफ साफ ये मतलब जैसे कह लें, मेरे ख्याल आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं या अपनी, खुदावंद यीशु मसीह ने साफ साफ बात की है कि वो मेरे साथ जो ओवरकमर है। तो दुल्हन के अलावा ओवरकमर कौन है? कौन हो सकता है? यानी इसके अलावा भी कोई है? जो सहून के हैं, जो नया यरूशलेम है, जो ओवरकमर है। अभी हम किस किस नाम से इनको पुकारा है वो भी आगे पढ़ते हैं, जो दुल्हन है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? जो ओवरकमर है, वो जो बच्चा है, वो जो दुल्हन है, वो कहाँ पे होगी? तख्त के ऊपर होगी, खुदावंद यीशु मसीह के साथ होगी। तो इसलिए आ, अगर हम किसी से, मैं कहूंगी कि आप स्टडी ना भी लें, कोई आपको मुकाशफा ना भी समझाए, आप खुद ही अपने बाइबल को पढ़ें और कह लें कि खुदावंद यीशु मसीह की बातों पे ईमान रखें, यकीन रखें, तो अक्ल करें और उम्मीद करें कि जो कुछ उसने कहा है वो हमारी जिंदगी में पूरा होगा। और जिस तरह उसने जो जो हुक्म दिए हैं, इसीलिए बहुत सी और भी किताबें हैं जो इसमें कह लें शामिल नहीं की गई। तो एक पास्टर का मैं मैसेज सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जितना कुछ हमें इस बाइबल में, जितनी किताबें आप कह लें कि हैं हमारे पास, अगर हम इसी पे अमल कर लें तो हम उसकी मानिद जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह की मानिद बनाने के लिए उसके हुक्म हैं, उस पे अमल करें तो हम यीशु की मानिद बन सकते हैं। यानी वो बनाने की कुदरत जो है वो रखता है। तो अगर वो किताबें जो इधर उधर हैं, जो नहीं भी इसमें शामिल है ना, तो अगर जितना हमारे पास है, अगर उसी पे अमल करने की कोशिश करें तो वो हमें यीशु तक पहुंचा देती हैं। तो इसलिए जितना हमें कह लें पता है, अगर उस पे ही ईमानदारी से, वफादारी से अमल करते रहें तो वो कलाम जो है वो हमें खुदावंद यीशु मसीह पर कह लें मजबूत करने में या उसकी मानद बनाने में हमारी मदद कर सकता है ना। लेकिन जो कुछ अगर लोग नहीं बनना चाहते, उनके कह लें इस तरह का है ही नहीं, बिहेवियर ही नहीं है कि हम पाक बने या हम उस तरह से खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करें, तो जितना मर्जी उनको सिखाते, नॉलेज जितना मर्जी दे दे, है ना, किताबें पढ़ते रहें, जितनी देर मर्जी कोई क्या आपको स्टडी देता रहे, अगर आपका क्या लें पुरानी इंसानियत आपके अंदर से नहीं निकली, खुदा के हुक्मों पे आप अमल नहीं कर रहे, तो जितना मर्जी आप नॉलेज लेते रहें, मैसेज सुनते रहें, मुकाशफा के जो तफसीरें हैं, तशरीह है, सुनते रहें, लेकिन आपकी जिंदगी अगर तब्दील नहीं हुई, आप तैयार नहीं हो रहे, तो कोई फायदा नहीं, है ना। तो इसलिए शायद कल परसों भी मैंने आपसे बात की कि ये जो स्टडी कह लें इस वक्त आप सीख रहे हैं, शायद आपके पास हो, लेकिन मैंने जब इसको सीखा, मैंने जब सुना अपने जैसे अपने पास्टर से, तो ये इसका पूरा फोकस ये है कि हमें किस तरह तैयार होने, वो एंटी क्राइस्ट में क्या खूबियां हैं, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन अगर हमें बाइबल जो हमें बताती है कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म पे अमल करें, जो शागिर्दों के जरिए हमें मिलते हैं, तो हमें और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है कि वो जी मुल्क एंटी क्राइस्ट साथ मिल जाएगा, वो सिंह का क्या मतलब, उसका क्या मतलब। अगर हम वो ना भी जाने ना, तो अगर सिर्फ हम अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करें, तो कह लें हमें और किसी की जरूरत नहीं है जानने की कि ये जो 10 मुल्क है उनका क्या मतलब है, सिंह जो है उसका क्या मतलब है ना। तो इसलिए ये जो अब मैं कहूंगी कि आप स्टडी सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जितना मुझे समझ लगती है मैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर हम इस जितना आप जान रहे हैं, अगर आप इस पे अमल करें, तैयारी का पूरा फोकस आप अपने ऊपर करें, दूसरों पे ना करें, या
इस वक्त क्या आ रहा है, एंटी क्राइस्ट पहले आ गया था, अभी आएगा, बाद में आएगा, या रैप्चर पहले होगा बाद में होगा। उस पे हमारा फोकस ना हो, हमारा फोकस हो कि मैं तैयार हूँ या नहीं तैयार, या मैं अपनी फैमिली मेरी तैयार है या नहीं है, हम उस पे ध्यान दें, है ना। और तैयार किस तरह होना है वो भी हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं कि कपड़ों का क्या मतलब है, उस चांद का क्या मतलब है, ये सारा कुछ हमने थोड़ा थोड़ा सीखा है ना। तो लेकिन यही तो हमारे पास एक मैं कहूंगी कि एक जगह पालूस रसूल ने कहा कि ये जिंदा उम्मीद है, पुरफजल ब्लेस्ड होप है कि हम खुदाम यीशु मसीह जब बादल पे आएगा तो हम जिंदा आसमान पे उठाए जाएंगे। इसी को शैतान जो है मिशनों को खुदा के कले खादमों को यूज कर रहा है कि ये उम्मीद हमारे से वो छीन ले, हमें गुमराह करने की कोशिश करता है कि रैप्चर नहीं होना, रैप्चर या तो ओ मुसीबतों के बाद होना है ना। तो फिर ये खुदा का वादा कहाँ गया कि ये जो उसने हमें उम्मीद दी है कि हम उस तरह से पाक हों, उस तरह से तैयार हों कि खुदाम जो है यानी अपनी दुल्हन को जो है वो लेने आ रहा है ना। तो इसलिए ये जो शैतान है ये मिशनों के अंदर से या जहाँ कहीं भी ऐसी स्टडी मिली है, वो लोगों के अंदर से वो जिंदा उम्मीद जो है या एक पुरफजल जो एक जलाली कलीसिया तैयार होनी है वो निकाल रहा है कि लोग जो है इसी डर और खौफ में जिंदगियां गुजारते रहे और वो तैयार ना हो इस तरह से। तो इसलिए हाँ मैं कहूंगी कि आप खुदाम यीशु मसीह पे उम्मीद रखें या ईमान रखें कि उसने वादा किया है कि जो गालिब आएंगे, जो फतह पे फतह हासिल करते जाएंगे, वो मेरे साथ मेरे तख्त के ऊपर बैठेंगे, है ना, मेरे साथ बैठेंगे, वो तख्त के आगे नहीं बैठेंगे, वो तख्त के खुदाम यीशु मसीह के साथ बैठेंगे। तो ये एक मैं कहूंगी कि बहुत आपने स्टडी सुनी होगी, तो ये बहुत आपने सुना होगा कि दुल्हन को कहा गया है कि जी वो तख्त के आगे खड़ी, वो जो बड़ी भीड़ है वो दुल्हन है, लेकिन वो बड़ी भीड़ दुल्हन नहीं है, क्योंकि जो इस तरह से तैयार है वो एक छोटा सा ग्रोह होगा। ओके, तो और आज हम सीखेंगे कि ये जो दुल्हन है इस या ये मर्द बच्चा जो है या ये जो उर्दू में बेटा और लड़का लिखा हुआ है वो बच्चा जो है, इसको और कितने नामों से जो है बाइबल में पुकारा गया है। सारे तो नहीं हम कर सकेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हैं, लेकिन थोड़ा सा हम जो है सीखेंगे कि और कितने नामों से जो दुल्हन है उसको खुदावंद ने कह लें पुकारा है या हमें खतों में मिलता है या पुराने ऐतनामे या नए ऐतनामे में। तो हमारे साथ निदा है और माया है ना, निदा नहीं है। ओके जी, वफा आप कर सकते हो जी उर्दू में? हाँ जी, हम ना क्योंकि थोड़ा फर्क है और काफी हवाले हैं, तो लेकिन मैं कोशिश करूंगी उसको थोड़ी तरतीब से कि पहले आप निकालें इफ्सियों के खत में जितने हवाले हैं वो हम पढ़ेंगे। माया आप भी और वफा। इफ्सियों पहला बाब उसकी 22 आयत में दुल्हन को कलीसिया के तौर पे बुलाया गया। जी आप पढ़ना माया और वफा। इफ्सियों पहला बाब जी, ये पहला बाप उसकी 22 आयत ना। 22 आयत का। ओके। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। हाँ जी, बस 22 है। 22 आयत। हाँ जी, माया आप पढ़ोगे? हाँ, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आमीन। आमीन। तो यहाँ पे एक किस्म का यानी कलीसिया को कहा गया है
यानी कलीसिया कहा गया है, यानी खुदा क्योंकि खुदा यीशु मसीह को दे दी गई, तो कलीसिया जो है वो जो उस बच्चे की मानी या उस दुल्हन की मानी तैयार हो गई है, हो रही है, वो खुदा यीशु मसीह को दे दी गई है ना। तो यहाँ पे कलीसिया कहा गया है। इफ्सियों 5 बाब और उसकी 22 आयत, 5 बाब उसकी 22 आयत। पढ़ूं? इफ्सियों 5 बाब, हाँ जी ठीक है। ए बीवियों, अपने शौहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावंद की। आगे भी हाँ जी, पढ़ना है कि बस यही है? पढ़ो आगे थोड़ा सा। ओके। क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। हाँ जी, तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि, हाँ जी माया आप भी पढ़ना। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। आमीन। आमीन। तो यहाँ पे एक किस्म का मसीह की या कलीसिया को बीवी के तौर पे कहा गया कि जो कलीसिया क्या है, मसीह की बीवी है या बदन, या एक और हवाला इसी का क्या लें, इफ्सियों 2 बाब उसकी 21 और 22 आयत। हेलो, पढ़ूं? हाँ जी। उसी में हर एक अमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसी में बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। आमीन। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यानी इसी दुल्हन को मस्कन कहा गया, मकदस कहा गया है। जी माया। इफ्सियों 2 बाब उसकी, हाँ जी 2 बाब 21 आयत। हाँ, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमीन। आमीन। हाँ जी, तो यहाँ पे एक किस्म का कह लें कि खुदा का मकदस जो है या हैकल जो है वो कहा गया है ना। और इफ्सियों 6 बाब उसकी 10 से 17 आयत तक पढ़ना। इसमें कह लें कि क्योंकि काफी लंबा है इसलिए इसमें असल में सिपाही कहा गया है, पहलवान कहा गया है। इफ्सियों 6 बाब उसकी 10 से 17 आयत, जिसमें हमें सबको पता ही है कि वो क्या कहते हैं, जंग के लिए लिबास पहनना और ये सारा। हाँ जी, पढ़ सकते हैं हम। वर्ष खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों का मुकाबला कर सको, मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों का अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रासबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपड़ लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आमीन। आमीन। जी माया। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से
और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना ना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। 17 तक ना दूं? तो इस से हमें पता चल रहा है कि हमें या उस दुल्हन को या उस बच्चे को क्या होना चाहिए। एक सिपाही की तरह सारा लिबास पहनना हुआ है और जंग के लिए हर वक्त तैयार होना चाहिए, या एक पहलवान की तरह जो कुश्ती, जैसे एक हवाले में आपको याद ही होगा कि पालूस रसूल ने कहा कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका है ना। तो एक पहलवान की तरह, एक सिपाही की तरह इसी बच्चे को या कह लें दुल्हन को कहा गया है। इफ्सियों 4 बाब उसकी 13 आयत में भी इसको कहा गया है कि ये क्या है, कामिल इंसान की तरह ये इसी मर्द बच्चे को या दुल्हन को। जी, इफ्सियों 4 बाब उसकी 13 आयत। ओके। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं, बस। हाँ जी, लेकिन आगे आप देख लें कि ये यही लिखा है ओके, कि हम बच्चे ना रहें। उस ताकि जो हम दुल्हन आगे है, को हाँ जी हाँ जी, पढ़ो। ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजगिरी और मक्कारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पवित्रता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पवित्रता होकर गठकर उस तस्वीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। हाँ जी, बहरहाल यानी इसमें ये है कि कामिल इंसान बनना है। और वो कौन बन रहा है, जो इस तरह की मोहब्बत में या जो भी हमने खसूसियत सीखी है ना, तो उनके कद के अंदाजा तक पहुंच रहा है। बच्चे नहीं रहना, झोंके की तरह इधर उधर नहीं उछलते बहते रहना, है ना। तो जो कामिल इंसान बन रहा है वो है मर्द बच्चा। जी माया। इफ्सियों जब 4 तक बाब उसकी 13 आयत। हाँ जी। जब तक कि हम सब के सब विश्वास परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक ब्याह से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो स्थिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। आगे भी पढ़ो दीदी। नहीं बस ठीक है। आगे इफ्सियों पहला बाब उसकी 23 जो आयत है 22 से 23 2 आयतें पढ़ना, जिसमें हमें यानी उसका बदन जो है कहा गया है, कलीसिया को खुदा यीशु मसीह का क्या है, बदन है, हम जिस्म है उसका। जी, और इफ्सियों सब पहला कुछ बाब। ओके हाँ जी और सब पढ़ो। कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसकी मामूरी, जो हर तरह से सब का मामूर करने वाला है। आमीन। आमीन। जी माया। इफ्सियों पहला बाब उसकी 22 और 23 आयत। 22 और 23। हम्म। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, तो उसके सब वस्तुओं पर
शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। आमीन। तो यहाँ पे हमें जैसे कह लें मसीह का बदन कहा गया है इस कह लें चैप्टर में। कलीसिया जो है मसीह का बदन है। अब हम जो ये सॉन्ग ऑफ सालमन है, गजलो गजलात, उसमें कुछ आयतें हैं जिसको पुकारा गया है, यानी मसीह की दुल्हन या जी निकालना। गजलो गजलात हाँ जी कौन सा बाब? निध ये 7 बाब उसकी 21 आयत। ये पूरी ही जो कह लें बुक है गजलो गजलात, उसमें 7 बाब कबूतरी जो 21 आयत नहीं है। ओके ओके 13 की है उसमें आयत। अच्छा 7 बाब 7 आयत पढ़ना। ये तेरी कामत खजूर की मानिद है और तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हैं। हाँ जी खजूर तेरा की ढील मानिद। डोल खजूर के हाँ जी समान पढ़ो। शानदार है और तेरी छत्तियां अंगूर के गुच्छों के समान है। आमीन। हाँ जी तो यहाँ पे जो दुल्हन है उसको खजूर का जो दरख्त है उससे कह लें तशबीह दी गई है, उसकी मानिद कहा गया है। और 4 बाब उसकी 2 आयत निकालें। 4 बाब की 2 आयत। तेरे दांत भेड़ों के गल्ला की मानिद हैं, जिनके बाल कतरे गए हों और जिनको गुस्ल दिया गया हो, जिनमें से हर एक ने 2 बच्चे दिए हों और उनमें एक भी बांझ ना हो। हाँ जी तो ये इससे भी एक किस्म का कह लें उसको जो क्या कहते हैं तशबीह जो है वो दी गई है ना। जिनके और एक और आयत है इसकी 6ठी जो आयत है उसमें भी पहाड़ के ऊपर जो क्या कहते हैं मोर और लुबान है, हाँ जी उससे भी तशबीह दी गई है। 6ठी आयत। इसी बाब की 6ठी आयत। हाँ हाँ जबकि दिन ढले और साया बढ़े, ये वाली। हाँ हाँ जबकि दिन ढले और साया बढ़े, मैं मुर के पहाड़ और लुबान के टीले पर जा रहूंगा। हाँ जी तो यहाँ पे भी इसको कह लें इससे तशबीह दी गई है, यानी जो मोर है या ये लुबान है जो कह लें जो पहाड़ों पे क्या कहते हैं ये होती हैं बोलते हैं सोना या जो हीरे जो हैं या मोती जो होते हैं उससे तशबीह दी गई है। और एक और वाला है 7 उसमें इसको पाकिस्तान से तशबीह दी गई है, इसी चैप्टर के 7 बाब और पाकिस्तान मेवेदार यानी पाकिस्तान जो है इसको कहा गया है, इसी दुल्हन को जो है, और कबूतरी कहा गया है। और एक हवाला हम पढ़ते हैं, यह पहला पतरस, गजलो गजलात के हो गए हमारे पहला पतरस उसका उसकी दूसरी वर्ष। कौन से चैप्टर की? पहला बाब, पहला पतरस पहला बाब 2 आयत।
اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ فضل اور ہاں جی اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ ہاں آمین۔ جی، یہ جو برگزیدہ جس کو کہا گیا ہے وہ بھی اس دولن کو کہا گیا ہے۔ جی مایا، پہلا پترس پہلا باب اور اس کی دوسری ہے۔ اور پرمیشور پتا کے بھوشیہ ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा अज्ञान मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। ہاں جی، اس کے ساتھ ہی ہے جو یعقوب کا خط ہے اس کا 5 باب اور اس کی 7 آیت تک پڑھنا۔ اس میں جو قیمتی پیداوار ہے، یہ یعقوب کا خط 5 باب اور اس کی 7 آیت میں ہمیں قیمتی پیداوار سے تشبیہ ایک جسم دی گئی ہے۔ بس اے بھائیو، خداون کی آمد تک صبر کرو۔ دیکھو، کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے میਂہ کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے۔ آمین۔ آمین، ہے نا؟ تو یہاں پہ قیمتی پیداوار اس کو کہا گیا ہے کیونکہ جی مایا پڑھیں۔ یہ کون سا حوالہ ہے؟ یعقوب کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 7 آیت۔ ساتویں۔ सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। आमीन। ہاں جی، تو یہاں پہ قیمتی پھل کہا گیا ہے۔ یہی یعقوب کا جو خط ہے اس کا پہلا چیپٹر اور اس کی 18 آیت میں بھی پڑھنا۔ پڑھو دی۔ ہاں جی پڑھو۔ پہلا پھل اس میں ہمیں کہا گیا ہے۔ اس نے اپنی ہی اچھا سے ہمیں ستیہ کے وچن کے دوارا اتپن کیا تاکہ ہم اس کی سرشٹی کی ہوئی وستوؤں میں سے ایک پرکار کے پرتم پھل ہو۔ آمین۔ آمین۔ ہاں جی، تو یہاں پہ ہمیں پہلے پھل کہا گیا ہے۔ جی ندا پڑھنا۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ ہاں، تو ہم کیا ہیں؟ پہلے پھل یعنی کہا گیا ہے ہمیں، اور بھی کافی پھل ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں تو حوالے میں کروں یا پھر صاف ہی بتا دوں کہ یہ ہمیں اس نام سے یعنی مکاشفہ کی کتاب میں، رومیو میں پہلے پھل کہا گیا ہے۔ زبور کی کتاب جو ہے 110 زبور اس کی پہلی آیت میں ہمیں پاؤں کی چوکی کہا گیا ہے۔ مکاشفہ 21 باب اس کے 10 آیت میں نیا یروشلم کہا گیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 11 باب اس کی 13 آیت میں کمواری کہا گیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو پڑھتے ہیں، نہیں تو میں ایسے ہی بتا دیتی ہوں۔ عبرانیوں کے خط میں ہمیں پلوٹھا کہا گیا ہے۔ ملائکی 3 باب اس کی 17 آیت میں جواہر کہا گیا ہے، اور متی 16 باب اس کی 28 آیت میں ہمیں خدا کی بادشاہی کہا گیا ہے، اور مکاشفہ 19 باب اس کی 7 آیت میں مسیح کی دولن کہا گیا ہے نا، اور رومیو 8 باب اس کی 17 آیت میں وارث کہا گیا ہے، اور رومیو 8 باب 23 آیت میں بھی پہلے پھلوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی یہ نام ہے یعنی اس بچے کے یا اس دولن کے، یعنی اس کو اس ناموں سے جہاں آپ یہ پڑھیں یا جہاں آپ کو کیا کہتے ہیں، تو وہاں پہ اس دولن کا ذکر ہو رہا ہے، جس مسیح کا بدن جہاں پہ کہا جا رہا ہے نا، قیمتی پیداوار، برگزیدہ اور پاکستان، کھجور کا ہرا درخت جو ہے، محفوظ سونا، وارث اور چشمہ، وہ ہم نے حوالہ میں نہیں پڑھا۔ غزل و غزلات میں 4 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ ہمیں چشمے سے بھی تشبیہ دی گئی ہے
है ना, पहलवान कहा गया है, सिपाही कहा गया है, कामिल इंसान कहा गया है, और मकदस कहा गया है, यानी कि हम खुदा की क्या हैं, हैकल हैं। और ये सारे नामों से यानी हम क्या हैं, गलबा पाने वाले, फतह हासिल करने वाले हमें कहा गया है दुश्मन की। और हम सब क्या है, मसीह का बदन है। ये कलीसिया जो है मसीह का बदन है, ये कलीसिया है ना, जो खुदा यीशु मसीह की माने तैयार हो रही है। ये बच्चा जो है कहा गया है। तो ये हम कल सीखेंगे, आज नहीं हो सका। और ये है वो कवारी वो कामिल इंसान। ये दूसरा ग्रंथियों 11 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि पौलुस रसूल ने कहा कि वो एक पाक दामन कवारी की मानिद कलीसिया को तैयार कर रहा है, जो कि जब खुदा यीशु मसीह आएगा तो उस दुल्हन को, या जो एक है, कंवारियों को लेने नहीं, पाक दामन यानी एक कवारी को लेने आ रहा है, यानी उसमें शामिल होंगे। यानी उनकी अलग अलग, जैसे कह लें कि मैं कहूंगी कि वो जैसे पौलुस रसूल का भी कल में है वाला में, ना वो यूनानी रहे ना, यानी वो सब क्या है, एक बदन है, मसीह का बदन है। उसको लेने के लिए खुदा यीशु मसीह जो है वो आ रहा है ना। तो इसलिए ये कोई फर्क नहीं है। एक कवारी जो है, जो पाक दामन कवारी है, जिसका हमें ये इसमें जिक्र मिलता है, ये जो है, जो पौलुस रसूल दूसरा ग्रंथियों 11 बाब और उसकी दूसरी आयत में कहता है। और बाकी भी हमने हवाले पढ़े कि ये पहला फल है, हम जो भी ये सारे हमने नाम पढ़े, उनको लेने के लिए खुदा यीशु मसीह आ रहा है ना, किसी तो हम देखेंगे कि मेरा ख्याल है ये अब ट्यूसडे को या अगले थर्सडे को इस पे बात करेंगे, क्योंकि हम मंडे को और ट्यूसडे को मेरा ख्याल है कि हम रोजे पे थोड़ा सा सीखेंगे, और क्या कहते हैं, क्रिसमस का जो थोड़ा सा उस पे बात करेंगे, या मेरा हाल क्रिसमस का नहीं, अभी हम पहले रोजे पे करेंगे, और फिर या आप क्या कहते हैं कि रोजे उसका क्रिसमस का भी पहले थोड़ा बता दें। चलिए ठीक है, इस पे हम बाद में बात करते हैं। तो लेकिन ये अब जो छठी आयत है, इस पे हम मेरा ख्याल अगले वीक बात करेंगे, है ना। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी भारी फजल दे, और हमें खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद, उसकी बीवी की मानिंद, उस पहलवान की मानिंद, नए यरूशलेम की मानिंद, और उस कीमती जो पैदावार है उसकी मानिंद हमें तैयार करे, मसीह की बदन की मानिंद हमें तैयार करे, ताकि हम जब खुदा यीशु मसीह घोड़े पे नहीं आ रहा, अब जब आना है खुदा यीशु मसीह ने इस तरह बादल पे आना है, जिस तरह के वो इस पे बात तो करनी थी, लेकिन अभी काफी हमारा टाइम हो गया। तो खुदा यीशु मसीह ने घोड़ों पे जब आना है, सब तब सबको नजर आएगा, लेकिन जब बदली पे जैसे उस तरह उठाया गया था शागिर्दों के, उस वक्त सिर्फ शागिर्द थे। वो हवाला अब हम फिर किसी दिन पढ़ेंगे। तो खुदा सिर्फ वहां पे उस वक्त खुदा यीशु मसीह के शागिर्द थे, जब खुदा यीशु मसीह आसमान पे उठाया गया था। तो बदली लिखा हुआ है कि उसको या उसके ऊपर चला गया खुदा यीशु मसीह, और फरिश्तों ने आके कहा, ए गलीली मर्दो, है ना, या इस तरह कुछ लिखा हुआ कि मर्दो, जिस तरह से तुम खुदा यीशु मसीह को ऊपर जाते देख रहे हो, इसी तरह वापस आते देखोगे, बिल्कुल उसी तरह, यानी कि बदली पे वापस आएगा। और खुदा यीशु मसीह उस फेथ के जो लोग हैं, उस तरह का जो ईमान, जो सिर्फ, और खुदा यीशु मसीह के इतने फॉलोवर थे, इतने शागिर्द थे, लेकिन उस वक्त जब खुदा यीशु मसीह आसमान पे उठाए गए थे, तो सिर्फ वहां पे वो ही जो 12 शागिर्द थे वो थे, है ना। तो उनके सामने खुदा यीशु मसीह आसमान पे उठाए गए थे। तो इसीलिए उसी फेथ पे, उस तरह का ईमान जिन मुकद्दसीन का है, जो उस दुल्हन की मानित है, उनको खुदा यीशु मसीह नजर आएगा जब वो बादल पे वैसे ही वापस आएगा, है ना। लेकिन जब घोड़ों पे वापस आएगा तो वो हर एक आंख उसको देखेगी। तो खुदावंद आप सबको और
मुझे भी फजल दे, और ये जो खुदावंद आपके ऊपर मेरे ऊपर गहरे नकाशपात खोल रहा है, भेद खोल रहा है, खुदावंद आपके दिल की आंखों को रोशन कर रहा है। और एक जगह पे वो हमने वर्ष नहीं पढ़ी जहाँ पे लिखा है कि मेरा दिल वो सोती है लेकिन मेरा दिल जागता है। तो जो 10 कवारियां हैं वो सो रही थी, और लेकिन जो उनके बारे में जिस्मानी पे भी तौर पे भी लिखा है, और मतलब जैसे कह लें रूहानी तौर पे भी वो सो रही थी। लेकिन ये इसी गज़लात में हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है। तो दुल्हन जो है, जो यीशु मसीह की बीवी है, उसका क्या है, दिल की आंखें रोशन है। इसीलिए हमारी आंखें या हमारे दिल जो है वो रोशन होना चाहिए। हमें उस तरह से तैयार होना है रूहानी तौर पे, है ना। ये जिस्मानी बात नहीं हो रही, दिल की आंखें हमारी रोशन होनी चाहिए, ताकि कलाम के गहरे मकाशफात हम पे खुले और हम उन पे अमल करने वाले हों। जो भेद खुलते हैं उनको दिल से कबूल करने वाले हों, उन पे अमल करने वाले हों। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी तैयार करे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जब इस तरह बादल पे हमें लेने आए, बदली पे लेने आए, तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह जमीन पे कदम नहीं रखेंगे, हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। तो गॉड ब्लेस यू। बैक टू सनिया को मैंने बोला है अंजना प्रेयर के लिए। बैक टू अंजना। अंजना है हमारे साथ? जी सनिया। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको भाभी जी बहुत कसरत की बरकत दे। खुदावंद का मसा हमेशा आप पे इसी तरह ठहरा रहे और आप हम सबके लिए बाइस बरकत रहे, और हमें इसी तरह खुदावंद के गहरे मकाशफात से जो हमें सिखाते रहे और हम इस पे अमल करने वाले हों, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करती हूँ। ओ प्रेज, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Oh, praise Lord, praise Lord, praise Lord, praise Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rabba 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 ra. Sikara rakha bara rakha bare re 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 re. O roboro rakha bara rakha sira rakha rakha bare re 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 re. O shira rabba bara rakha bara rakho ro 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 re re bere 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 bere. O rabba ba 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 sikara rakha bara rakha baro ro re 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 re. ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन। हम इस लायक नहीं, लेकिन खुदावन ये तेरा फजल है कि तूने हमें मिल बैठने का मौका दिया, तेरे कलाम को समझने का तूने खुदावन ये फजल बख्शा। हम इस लायक नहीं, लेकिन खुदावन तूने हम पे अपनी मेहरबानी की। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। तूने औरों में से अलग किया, तेरा शुक्र करते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। यस लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र हो खुदावन। बुजुर्ग आसमानी बाप, मेरी जान तुझे मुबारक कहती है। हम सब जितने इधर मौजूद हैं खुदावन, जो कुछ हमारे अंदर है वो तुझे मुबारक कहता है, क्योंकि तू है ही मुबारक, तू हमेशा तक मुबारक रहेगा। क्योंकि खुदावन तू आज कल और अब तक यकसा खुदा है, तू कभी भी नहीं बदलेगा। खुदावन तू हमेशा खुदा है, जिसने दुनिया को पैदा किया वो उसने हमें पैदा किया, और हमेशा तक तू प्यारे खुदावन हमारे साथ रहेगा। ये तेरा वादा है, हम इस वादे के लिए तेरा शुक्र करते हैं। प्रेज लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र हो। तू रहमत से भरा है, तू हशमत से भरा है, तू गयूर खुदा है, तू मेहरबान है। तू खुदावन जब हम गंदगी में थे तभी तूने हमें चुना। खुदावन तेरी ये मेहरबानी है हम पे। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन तूने हमें अलग कर लिया, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरा नाम बनाम हम पे हाथ बढ़ा, हम तेरा शुक्र करते हैं। ओ प्रेज लॉर्ड, तू हम पे मेहरबान हुआ, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा हम पे फजल हुआ, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन जी तूने हमें प्यारे खुदा
खुदावंद उकाबों की मानद जोर दे रहे हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद। हमारे अंदर कोई ऐसी प्यारे खुदावंद खूबी नहीं है, लेकिन तू खुदावंद अपने रूह से भर रहा है, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा पाक रूह हमें छू रहा है, हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे पाक रूह से हम तपाए जा रहे हैं, हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद जी। हमें रोज बरोज तो प्यारे खुदावंद अपनी मानद बनाता जा खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद। हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है, लेकिन खुदावंद तू हमेशा हम पे अपना हाथ बढ़ाए रखना। तेरा पाक रूह हमेशा हमारी रूहानी आंखों को खोले रखे, ताकि हम तुझे प्यारे खुदावंद देखने वाले बने। हमारी आंखें तेरी तरफ सीधी रहें ना प्यारे खुदावंद, हमारी पलकें तेरी तरफ प्यारे खुदावंद सीधी रहें, ताकि हम दाएं बाएं ना देखें बल्कि तुझे ताकते रहें, क्योंकि खुदावंद तू ही निजात दहिंदा है, तूने ही हमारा फिदिया दिया है, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा शौहर है। ओ प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरे इस खूबसूरत वादों के लिए, खुदावंद तेरे मीठे कलाम के लिए जो तूने खुदावंद हमारी जिंदगी में रखे। खुदावंद तूने गैर कौमों में से चुन के खुदावंद जी हमें बरकत दे दी, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। ये बरकत खुदावंद जी सिर्फ हम तक नहीं बल्कि प्यारे खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद हमारी नस्लों में कन्वर्ट हो, प्रेज लॉर्ड, ताकि हम तेरे खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करें, बल्कि खुदावंद जी कभी शैतान को देख के डर ना जाए, बल्कि तेरे रूह के लिबास से, बल्कि तेरे रूह से भर के खुदावंद तेरे नाम का इकरार कहें और कहेंगे खुदावंद हम तेरे हैं। ओ प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। राबा बारा रखा बारे रे 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 रे, ओ रो बोरो बोरो रखा बारा रखा रा सीरे रखा बारे रे 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 रे, ओ शीरा रा बारा 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 रखा बारा रखो रो रो रे रे बेरे 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 बेरे। ओ खुदावंद जी अपनी ताबेदारी सिखा दे खुदावंद, तेरे खौफ में हम जिंदगी गुजारे प्यारे खुदावंद, हम तेरे बिना कुछ नहीं है खुदावंद, तेरा खौफ हम में आ जाए खुदावंद जी। खुदावंद तेरे खौफ के बगैर प्यारे खुदावंद हम कभी भी किसी काम के नहीं है खुदावंद। जब तेरा खौफ होगा तभी खुदावंद हम पाक होंगे, तभी हम पवित्र होंगे, तभी खुदावंद हम पाक दामन कमवारी की माने तैयार होंगे, तेरी दुल्हन के लिए तैयार होंगे। ओ प्रेज लॉर्ड, हमें हिकमत से भर दे। ओ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, ये ताबेदारी सिर्फ हम तक महदूद ना रहे मेरे यीशु, ये ताबेदारी हमारी नस्लों में कन्वर्ट कर, हमारे बच्चों में कन्वर्ट कर, इनके बच्चों में कन्वर्ट कर। ओ यस लॉर्ड जीसस, ताकि ये तेरे नाम का इकरार करने वाले हो डट जाएं कि हम यीशु के हैं, हम तेरे हैं, हम तेरे नाम से खड़े हैं। ओ प्रेज प्यारे खुदावंद, ये प्यारे खुदावंद कभी भी जब हमने तेरा नाम ले लिया है, हम तेरी निजात से वाकिफ हो गए, तो खुदावंद कभी पलटने ना देना खुदावंद, अपने जोरे बाजू से तेरे खुदावंद उठा खड़ा करना खुदावंद, हमेशा अपना हाथ हम पे बढ़ाए रखना। तेरा खून से कलाम जो तूने भेजा है वो खुदावंद हमारे जिस्मों को ताता रहे। ओ खुदावंद, जैसे प्यारे खुदावंद यिर्मयाह कहता है, जैसे तूने उसे रोया दिखाई कि तूने मट्टी के बर्तन है हम तेरे हाथ में। ओ खुदावंद, तू हमें अपनी ये मट्टी के बर्तन जो तूने बना लिए तो इन पे अपने लहू का रोगन लगा दियो। यस लॉर्ड जीसस, और खुदावंद ये तेरे पाक रूह के हैंड ओवर करते हैं, तेरे पाक रूह से भरते जाएं और लबरेज होते जाएं, लबरेज होते जाएं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि सैराब करने वाला खुद भी सैराब होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरे नाम को बढ़ाते, तेरे नाम को ऊंचा करते, तू मेहरबान है। ओ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद जी, तूने खुदावंद जब से मीटिंग स्टार्ट हुई तूने इसका होल्ड लिया, तू जब से प्यारे खुदावंद ये ग्रुप बना है खुदावंद तब से तू प्यारे खुदावंद इस ग्रुप में मौजूद है, और बहुत सी रूहों को बचाने का खुदावंद तूने ये सोर्स बनाया हुआ है, क्योंकि खुदावंद तेरा पाक रूह इन्हें चुन के लाता है खुदावंद, जिससे तू जानता है कि वो तेरे साथ चलेंगे। और प्यारे खुदावंद बहुत सी रूहों को ये तौफीक बख्श के वो भी खुदावंद तेरी आवाज को सुने और पीछे ना हट जाए, बल्कि खुदावंद ईमान के एक और लेवल में आगे बढ़े हो। यस लॉर्ड जीसस, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि खुदावंद तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है, तू हमारी दुआओं का जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद है। तेरा पाक रूह हमें टच कर है, तेरे पाक रूह ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, तेरे जंगजू फरिश्ते हमारे दरमियान मौजूद हैं। ओ यस लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद, तू मेहरबान है, तू हम पे मेहरबान है खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। आज खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारियों की हदिया तेरे लिए चढ़ाते हैं, क्योंकि खुदावंद जी
दूसरी चीजें तू मुफ्त में देता है खुदावंद। हम तुझे शुक्रगुजारी की जो प्यारे खुदावंद कुर्बानी है ये तुझे पसंद है। आज हर कोई खुदावंद से शुक्रगुजारी करे अपनी जानों के लिए। खुदावंद हम अपनी जान के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इन सांसों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर कोई चीज नहीं है, हमारे घर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी है, इवन के हमारे बच्चे भी हमारे नहीं खुदावंद, ये सब तेरा है। ओ प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी। इस दिल को ले प्यारे खुदावन, बदनों को ले और रूह से भर दे, रूह से भर दे खुदावन जी। आज हम खाली ना जाए खुदावन, हमें पाक दामन कवारी की तरह तैयार कर, अपनी दुल्हन बना ले खुदावन। जबकि तू दुल्हन के लिए तैयार कर रहा है, जब तू आए तो खुदावन ये आंखें तुझे देखने वाली हो खुदावन। पाक तू ये आंखें दे दे खुदावन, वो कान दे दे जो तू जब तू आए तो खुदावन ये सुनने वाले हो, तुझे सुनने वाले हो। और खुदावन हम उड़ के खुदावन नाचते गाते हुए खुदावन तेरे इस्तकबाल करते हुए खुदावन जी तेरे साथ हवा में उड़ जाएं यीशु के नाम में। ओ प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं तेरे प्यार के लिए खुदावन। तेरा प्यार निराला है, तू अजीब है, तू मशीर है, तू वाकई खुदावन हमारे दरमियान मौजूद है खुदावन। तेरी इस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरी इस कुर्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हमें और गहरे में ले जा, और गहरे में ले जा, अपनी कुर्बत में ले जा खुदावंद। खुदावंद जिस तरह यूहन्ना आरिफ कह खुदावंद तुझे सीने से लगाता था खुदावंद, हमें भी लगा। हम तेरी सांसों की खुशबू को प्यारे खुदावंद प्यारे खुदावंद महसूस करें खुदावंद, तुझे पा ले खुदावंद जी। जबकि प्यारे खुदावंद जहाँ कहीं हम ईमान में कमजोर हैं खुदावंद तो हमारा जोर बन जा खुदावंद, हमारी ताकत बन जा खुदावंद। हमें वो ईमान दे जो तुझ तक लेके जाता है, जो तेरे तक लेके जाता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हम जिस्मानी नहीं रूहानी तौर पे, हमें जिस्मानी तौर पे तो खुदावंद तू हमारे साथ है, क्योंकि तूने खुदावंद हमें इस दुनिया में अपने मकसद के लिए पैदा किया। रूहानी तौर पे खुदावंद तू तैयार करता जा रोज बरोज, ताकि खुदावंद हम तेरी मानिंद हो जाएं, हम तेरी मानिंद हो जाएं खुदावंद। तू हमें भूल ना जाना खुदावंद। जब खुदावंद कभी ना प्यारे खुदावंद अगर कभी हमसे कोई गलती खता गुनाह हो गए हैं खुदावंद जाने अनजाने में, तो खुदावंद अपने लहू से धो दे, क्योंकि तू धोने की कुदरत रखता है खुदावंद। तू किरमजी गुनाहों को भी खुदावंद बर्फ की तरह साफ कर देता है। आज जब कहीं हम कमजोर हैं तो खुदावंद अपने जोर से, अपने जोरे बाजू से हमें छुड़ा, और खुदावंद अपनी बरकत का हाथ बढ़ा, तेरी गहरी हजूरी को महसूस करें, तेरा जलाल हम प्यारे खुदावंद रिसीव करें यीशु के नाम में, और तेरे जलाल में आगे बढ़ते जाएं, तेरे नूर में आगे बढ़ते जाएं। तो हमारे रास्तों के लिए खुदावंद अपना नूर चमका दे, अपने चेहरे का नूर चमका, ताकि खुदावंद हम कभी दाएं या बाएं ना मुड़े, बल्कि जो रास्ता तूने दिखा दिया है खुदावंद जी उस रास्ते पे चलें खुदावंद, क्योंकि वो ही निजात का रास्ता है, वो तेरे तक लेके जाता है खुदावंद। तूने खुदावंद कलाम में कहा है कि जो जिन्होंने मुझे देखा नहीं खुदावंद वो ईमान लाया, वो उनमें से हम हैं खुदावंद। तू हमें कबूल कर खुदावंद, हम तुझे प्यार करने वाले हों। जहाँ कहीं खुदावंद हम गिर गए हैं तो खुदावंद तू प्यारे खुदावंद तूने कलाम में लिखा है कि तू झुके होंठों को उठा खड़ा करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, आज जहाँ कहीं हम गिर गए हमें उठा। प्रेज लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र हो ओ प्रेज लॉर्ड। तेरा शुक्र करते हैं इब्लीस के हर प्लान को खुदावंद यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ, और खुदावंद तेरी कुर्बत में और बढ़ते हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज लॉर्ड, खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद, जो सब कुछ मांगते हैं पा लेते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद अपने आप को तेरे लहू में छुपाते हैं, यस लॉर्ड जी, आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, इसके नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। Amen. God bless you. God bless you. ओके जी, गुड नाइट। फिर आज जैसे मैंने आपने भी शायद फील किया, मैंने खुदावन की जो मतलब कुछ ऐसा नजर नहीं है, लेकिन खुदावन की हुजूरी को बड़े ही गहरे तौर पे मैंने यानी महसूस किया, और ऐसे देखा जैसे आसमान खुला हुआ है, और खुदावन की जो थिक अनाइंटिंग है वो हमारे ऊपर छाई हुई है। तो अगर आपको भी कुछ महसूस हुआ है या देखा है आपने तो आप शेयर कर सकते हैं। और माया, मैं चाहती हूँ, कल आपकी आवाज ठीक नहीं थी आ रही, तो आज जो कल आपने देखा था उसको दोबारा से जरा बता दें हमें।
कल दी मैं देखी थी जब सिस्टर सबको नाम से प्रेयर कर रहे थे, तो मैं ऐसा देखी थी कि हम ऐसे जैसा खेती है उसमें हम सब घुटने पे बैठकर प्रार्थना कर रहे, नीचे पूरा जैसा घास है और हम उस पर बैठकर प्रार्थना कर रहे। और जब सिस्टर नाम लेके जैसा प्रेयर कर रही थी, तो वैसे ही एक हाथ जैसे एकदम ऐसा वाइट कपड़े और एक सिर्फ हाथ दिख रहा था जो सबके सर पर हाथ रख रहे थे। Praise God. Praise God. God bless you, माया। बहुत ही खूबसूरत खुदावन ने आपको दिखाया वाकई ही कि खुदावन का हाथ हमारे ऊपर है। और खुदावन हमारी सारी दुआओं को सुन रहा है और बरकत दे रहा है। खुदावन का शुक्र। और भी किसी ने अगर कुछ देखा है या कुछ महसूस किया तो वो शेयर कर सकता है। कल या आज दुआ में सुरैया अंजना थी हमारे साथ कल। ओके, चलो ठीक है। गॉड ब्लेस यू। गॉड नाइट।